This call is now being recorded. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. تو الحمدللہ میں نے آپ لوگوں کی جو ریویژن کلاس ہوتی ہے، جو پریکٹس کلاس ہوتی ہے رادر، اس میں دیکھا تھا میں نے کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہیں، بہت اچھے سے آپ لوگ اپنی پریکٹس کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک بات چھوٹا سا ہم ریکیپ لیتے ہوئے چلتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور پھر اپنی کلاس کو آگے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو اسما ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے جو معرفہ کی اقسام میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا علم کو. ٹھیک ہے، علم کو ہم نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا، معرف باللام کو رکھ کے دیکھا، اور پھر ہم نے اس کے بعد تھرڈ پہ کیا کر رہے تھے ہم لوگ، اسم الاشارہ. ٹھیک ہے، اچھا پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کون کون سے معرفہ کی اقسام کی ہیں. علم، اسم الاشارہ، اور دو کون سی اور کی تھی، مائک انمیوٹ کا آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ معرفہ کی اقسام کون کون سی کی تھی ہم نے؟ نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، انمیوٹ کو آپشن دے دیں بچوں کو. ابھی انمیوٹ کا آپشن ہے. تو پھر یہ تھمز ڈاؤن کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ؟ موصول، اسم الموصول، اس میں موصول اور جاری کیے تھے، اور ایک تھا ضمائر. ٹھیک ہے، یہ 5 ہم نے معرفہ کی اقسام کی تھی. ٹھیک ہے، یہ سب کو اچھے سے یاد ہے. پھر ہم آتے ہیں کہاں پر، جملہ اسمیہ پہ. ٹھیک ہے، ہم نے جملہ اسمیہ میں جو امپورٹنٹ چیز دیکھی وہ یہ دیکھا کہ ایک ہوتا ہے مبتدا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے خبر. مبتدا کا لازمی ہونا کیا، دو چیزیں ہوتی ہیں، کیا کیا ہونا چاہیے، معرفہ اور نکرہ، معرفہ ہونا چاہیے اور مرفوع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور خبر کے لیے نکرہ ہونا چاہیے اور مرفوع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے مبتدا کو، تو ہم نے یہاں پہ جو ابھی اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، ہم ان سب کو رکھ کے جملہ اسمیہ بنائیں گے انشاءاللہ، ہے نا. ہم نے بنا بھی لیا. ہم نے کس سے بنایا سب سے پہلے؟ علم سے بنایا. علم سے کیا بنایا ہم نے، زید صالح. پھر ہم نے ال لگا کے بنایا. ال سے کیا بنایا ہم نے، الولد صالح. دیکھیں یہاں پہ بھی یہ معرفہ مرفوع ہے، یہ بھی معرفہ اور مرفوع ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم تھرڈ جو ہم کر رہے تھے، ہم نے یہاں پہ اسم الاشارہ کی طرف آئے. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ ھذا صالح کیا. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ھذا ہے یہ مبتدا کی جگہ پر آ سکتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ 2 ریزن بتائیے کہ ھذا مبتدا کی جگہ کیوں آ سکتا ہے. کیونکہ یہ مرفوع ہے اور مرفوع ہے اور معرفہ ہے. اچھا دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ نے کہا معرفہ ہے، یہ تو چلیں بالکل صحیح بات ہے. اب یہ کہا کہ یہ مرفوع ہے، تو اس کی منصوب اور مجرور حالت کیا ہوتی ہے؟ ھذا ھذا ھذا، ھذا ہی نہیں، نہیں ھذا، اس کی تینوں کی ایک ہی ہوگی. یہ ھذا ہم نے یہ پڑھا تھا تینوں ایک. کہ ھذا جو ہے مبنی ہے. جی مبنی جی اسما کیا ہوتے ہیں، جن جن کی کی سیم دکھتے ہیں، ہے نا. تو جی اگر جی میں جی پوچھتی ہوں کہ ھذا کا آپ نے مجرور منصوب بتانا ہے تو آپ ھذا ہی بتائیں گے. ٹھیک ہے، ھذا ھذا ھذا.
ٹھیک ہے، لیکن اس وقت یہ مرفوع ہے کیسے پتا چلا؟ کیونکہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. اور یہ مبتدا کی جگہ پر ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا ہم نے یہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم قریب، ٹھیک ہے، اور بعید، دو طرح کے ہم نے اشارے پڑھے تھے. ٹھیک ہے، اور جب بھی ہم گرامر میں چیزیں پڑھیں گے تو ہم ہر چیز کا مذکر مؤنث پڑھتے ہیں لازمی. ٹھیک ہے، تو ہم نے قریب کے لیے مذکر پڑھا اور مؤنث پڑھا، بعید میں ہم نے مذکر پڑھا اور مؤنث پڑھا. اچھا مثنیٰ آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے، لیکن اس میں زیادہ ہم نے پریکٹس نہیں کرنا کیونکہ ہم الحمدللہ لسان القرآن پڑھ رہے ہیں، اور لسان القرآن میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، اور قرآن میں مثنیٰ کے جو صیغے ہیں وہ بہت ہی کم یا نہ کے برابر ہی آئے سمجھیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ حاذا کیا ہے؟ قریب کا اشارہ ہے، مذکر کا ہے، واحد کا ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں ایک منٹ مجھے اوکے. عظمیٰ فہمید یہ بتائیے کہ قریب مؤنث واحد کا اشارہ کیا ہوگا؟ عظمیٰ فہمید. سونیا خان آپ بتائیے. سونیا خان جی. میم جی، قریب کے لیے، بعید کے لیے، قریب مونس کے لیے ہوگا حاضی. حاضی. اور مذکر کے لیے مذکر کے لیے قریب، حاضا. حاضا. اور جمع ہاؤلائی. کس کا ہے یہ، مذکر کا یا مؤنث کا؟ مذکر کا بھی اور مونس کا بھی. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا صوبیہ بلال مجھے یہ بتائیں کہ بعید کے لیے مذکر کا کیا ہوگا، واحد کا؟ ذالکا. مؤنث کا؟ تلکا. اور جمع جمع اولئک. اولئک کس کا، مذکر کا یا مؤنث کا؟ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. دونوں کے لیے سیم ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا شائستہ مجھے یہ بتائیے کہ اولئک کا واحد کیا ہوگا؟ اولئک کا واحد کیا ہوگا؟ اولئک اگر دوز ہے، ٹھیک ہے، جمع ہے، تو واحد کیا ہوگا اس کا؟ روبیہ شبیر آپ بتائیے. جی آپ ہی، اولئکا کا واحد ہوگا مذکر کے لیے ذالکا اور مؤنث کے لیے تلکا. ویری گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کے کلیئر ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا اگر میں آپ سے یہ کہتی ہوں راشدہ، میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک اسم آپ کے سامنے ہے تل کا. ٹھیک ہے، اس کی چاروں آپ نے پراپرٹیز بتانی ہے. آپ یہ رفع ہے اور یعنی مرفوع ہے اور رفع ہے اور واحد ہے، مذکر ہے. پھر سے مونس ہے مونس ہے. چلے میں ایک ایک پوچھتی جاتی ہوں، بتاتے جائیں. جنس میں کیا ہے یہ؟ یہ جنس میں مؤنث ہے. عدد میں یہ واحد. یہ دوسرا کون جواب دے رہا ہے راشدہ کے علاوہ؟ جی عدد میں کیا ہے؟ واحد. عدد کہتے ہیں نمبر کو، نمبر یعنی واحد، جمع، مثنیٰ. آپ ہی واحد بول رہی ہوں. واحد بولی ہیں. اچھا وسط میں؟ وسط میں یہ وسط ہوتا ہے معرفہ نکرہ. وسط میں معرفہ. اور اعراب کیا ہے اس کا؟ رفع. مرفوع حالت میں ہے نا، جی مرفوع حالت میں ہے. ٹھیک ہے. جی
अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ तिल का और मैंने मुब्तदा तो लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया तो आप क्या कहेंगे? ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? मरफू है। अच्छा नसीम, जी मैंने अभी आपी। इसको जुमला इस्मिया में नहीं रखा और मैं अब आपको सिर्फ तिल का लिख कर आपसे पूछ रही हूँ कि ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, तो क्या होगा आपका जवाब? आपी माजरत, वो ना तीनों कंडीशन में आएगा ना ये। मबनी है ना, इसलिए वो जुमला आपकी बात सुनने में ना मुझे वो थोड़ा हो गया था कि हम्म। मैंने पूरा जब जुमला मैंने नहीं आपको सुना। हाँ जुमला इस्मिया में जी मुब्तदा की जगह नहीं रखा तो मैंने आपसे पूछा तिल का क्या है, जैसे हम बोलते थे ना नसब भी हो सकता है, जर भी हो जी सकता जी है, तो जी यहाँ जी पर आप जी ना। कहेंगे ये मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो जी सकता है और मजरूर भी हो सकता है। ठीक जी है, आपी मैंने। जी आपी, कोई जी आप। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा चलें, अब आज इंशाल्लाह हम उसमें देख लेते हैं मुसन्ना। ठीक है, मुसन्ना एक बार देख लेते हैं, याद नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए। ठीक है, हाजा हमने करीब में देखा वाहिद के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं मुसन्ना में क्या होता है। ये वाहिद है, ठीक है, डुअल में हम देखते हैं क्या होता है। इसके लिए होता है हाजानी। क्या होता है? हाजानी, यानी दो के लिए इस्तेमाल होता है, दो के लिए इस्तेमाल होता है, करीब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर मैं कहना चाह रही हूं कि ओके दीज आर टू पेन्स, ठीक है, तो उसके लिए दीज के लिए होता है ये हाजानी। ठीक है नसीम, अगर मैं कहना चाह रही हूं दीज आर टू पेन्स और ये लफ्ज होता है दीज के लिए हाजानी, तो क्या हो जाएगा ये? हाजानी कलमानी। हाजानी कलमानी। ठीक है, कलमानी हमने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि दो पेन है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रफा में जब हम मुसन्ना का इस्तेमाल करेंगे तो आनी की आवाज आएगी। ठीक है, तो हाजा का मुसन्ना क्या होगा? हाजानी। क्या होगा? हाजानी। हाजानी। ठीक है, मुसन्ना होगा हाजानी। लेकिन यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बता दूं, जैसे हमने ये देखा कि ये जो हाजा है ये मबनी है। ठीक है, हमने कहा था कि जो अस्माए इशारा होते हैं वो मबनी होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि आगे क्या होता है वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगी जब हमने मबनी पढ़ा था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आप बस यही याद रखें कि ये मबनी होते हैं। तो वो जो चीज मैंने कहा था मैं बताऊंगी, वो ये समझ लें कि जो मुसन्ना होते हैं वो ये मरफू जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, मंसूब और मजरूर इनका अलग आता है। जैसे हमने कहा ना मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, इसी तरह से जब हम बात करेंगे रफा में इसका एक अलग वर्ड है जो कि हाजानी है, नसब और जर में इसका एक अलग वर्ड यूज होता है। ठीक है, वो वर्ड क्या होता है? वो होता है हा जईनी। क्या होता है? हा जईनी। ठीक है, जैसे आईनी की आवाज आती है मुस्लिम मईनी। ठीक है, बस इसी तरह से याद कर ले, हा जईनी, हा जानी, हा जईनी। ठीक है, आप लोगों के पास चार्ट होगा, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर भी हुआ था, उसमें से आप देख सकते हैं हा जईनी। लेकिन हमने यूज कौन सा करना है? जब हम जुमला इस्मिया बनाएंगे तो हम हाजानी यूज करेंगे या हा जईनी यूज करेंगे? हाजानी। हाजानी यूज करेंगे, क्योंकि हम हर चीज को जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम मरफू इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मुब्तदा मरफू होता है। तो हाजानी, हाजैनी ये दो मुसन्ना में होते हैं, ये हालत रफा में होता है और ये हालत जर और हालत नसब में होता है। ठीक है, ये आप लोगों को बताने के लिए है, याद नहीं करना इसको। ठीक है, बस जहन में रहता है, वेल एंड गुड। ठीक है, हाजानी, तो ये क्या हो गया? ये मुजक्कर के लिए हो गया। ठीक है, अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे हाजा, हाजानी, हाजैनी, हाउलाई। पूरी लाइन कैसे कंप्लीट हो गई हमारी?
हाजा, हाजानी, हाजैनी, हाउलाई। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है ना? आप ही ये मुजक्कर, जी आप ही ये हम्म, मुजक्कर के लिए तो मोनस के लिए भी यही होगा। अभी मोनस पे तो मैं आई नहीं बच्चे। जी ठीक है, तो ये मुजक्कर में क्या हो गया, मुजक्कर वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली। हाजा, हाजानी, हाजैनी, हाउलाई। हाजा तीनों हालतों में ऐसे ही रहेगा, हाजा हाजा हाजा। हाउलाई ऐसे ही रहेगा, हाउलाई हाउलाई हाउलाई। लेकिन जब मुसन्ना की बात करेंगे तो हाजानी, हाजैनी, हाजैनी, जैसे हम बोलते हैं ना मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, वही पैटर्न यहाँ पर हमने फॉलो किया। ये हमने लाइन पढ़ ली मुजक्कर की। ठीक है, अब हम देखते हैं मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? हाज़िही। हाज़िही। ठीक है, हाज़िही करते हैं। ठीक है, अब हाज़िही करते हैं। अब मुसन्ना के लिए क्या करेंगे? ठीक है, हाज़िही ये तो एक के लिए हो गया, लेकिन अगर हम दो मुअन्नस कहना चाहते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हा ता नी। क्या इस्तेमाल किया जाता है? हा तानी, हा तानी। ठीक है, हम्म, आ, ओके, अगर मैं कहना चाहती हूं कि आ, ये दो कमरे हैं, ये दो कमरे हैं। ठीक है, तो मुनीजा मैं क्या कहूंगी? ये दो कमरे हैं। जी मुनीजा, पूरा पूरा ये दो कमरे हैं। सही जवाब दिया मुनीसा ने, हातानी गुरफतानी। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अब ये जो हातानी है ये क्या है? आनी की आवाज से क्या पता चल रहा है? ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, क्या है? मरफू है। मरफू है। अच्छा, अब ये माइक म्यूट करें तमाम लोग, सब लोग जी जी। अच्छा, हातानी, अब मैंने जैसे कहा हा जानी का हा जैनी होता है, मुस्लिमानी का मुस्लिमैनी होता है। ठीक है, मोमिनानी का मोमिनैनी होता है। तो हातानी का क्या होगा? हातैनी। हातैनी। ठीक है, हातैनी हो जाएगा। तो याद होगा ये हाजानी, हाजैनी, हातानी, हातैनी। ठीक है, जी आती। तो ये क्या हो गया? हाजिही, हातानी, हातैनी, हाउलाई। ठीक है, फिर भी मैं कह रही हूं अगर आप याद ना भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मालूम होना चाहिए। ठीक है, मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को देखा था प्रैक्टिस में, आप लोगों को ये मुसन्ना वाले भी पूछे थे। ठीक है, तो अच्छी बात है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाजानी, हाजैनी, हातानी, हातैनी, इतना याद हो गया? आ गया सबको समझ में? जी आती। चले, अब उसके बाद हम नेक्स्ट पहुंचते हैं बईद के लिए जो इशारा होता है मुजक्कर का, वो क्या होता है? ज़ालिका। जालिका। जालिका। ठीक है, जालिका ये वाहिद का होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि मुसन्ना के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मुसन्ना के लिए इस्तेमाल किया जाता है जानिका। ठीक है, जानिका। ठीक है, क्या इस्तेमाल किया जाता है? जानिका। अगर मैं आपसे कहूं
Those are 2 pens. Mrs. Kausar. ज़ानिका कलमानी। ज़ानिका कलमानी। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर 2 के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ज़ानिका करेंगे, दोस्त के लिए, ठीक है, दूर के लिए। अच्छा, अब इसका ये भी क्या होगा, ये सेम वही पैटर्न चलेगा कि ये मरफू है, ठीक है। मंसूब और मजरूर के लिए क्या होता है अभी देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ज़ानिका है। अब यहाँ पे वो जो आवाज थी ना आ और आई वाली, वो बीच में आ जाएगी। ये क्या है, जानी जैनी, जानी जैनी, और का यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो आनी आईनी की आवाज है ना, यहाँ पे बीच में आ जाती है, जानिका जैनिका, जानिका जैनिका। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या जुमला इस्मिया की शुरुआत जैनिका से हो सकती है? नहीं आपी। क्यों? क्योंकि ये मंसूब और मजरूर है। वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक है। जैनिका से अगर मैं कहूं बनाए तो आप कहेंगे बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो मरफू हालत में नहीं है। वेरी गुड, माशाल्लाह, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, जानिका जैनिका, जानिका जैनिका। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि तिलका से क्या बनेगा, अगर मैं कहूं सिर्फ जाल को ता से चेंज कर दें, बताएं बना के। तानिका। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक है। जानिका जैनिका, तानिका तैनिका, ठीक है, तानिका तैनिका। अगर मैं कहूं कि वो 2 कमरे हैं, कायनात, जी मैम। वो 2 कमरे हैं, इसमें ज़ानिका में बनाया है। अच्छा, काहे में बनाए? मैंने कहा कि कमरे, कमरे की अरबी क्या होती है? गुरफा। जिससे सवाल किया जाए काइंडली वही जवाब दिया करें जी। गुरफतुन। गुरफा होती है ना, जी। गुरफतुन होती है। अब गुरफतुन मुअन्नस है या मुज़क्कर? मुअन्नस। मुअन्नस है, ठीक है, मुअन्नस है। तो हम सीगा किसका इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस का या मुज़क्कर का? मुअन्नस का। मुअन्नस का करेंगे। अच्छा, मैंने कहा 2, ठीक है, 2, तो 2 के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मुज़क्कर या मुअन्नस? मुअन्नस करेंगे, तिलका। मुअन्नस करेंगे, ठीक है। सॉरी, एफ लिखूं ना, फेमिनिन, मुअन्नस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तिलका होता है 1 के लिए, 2 के लिए क्या होता है? तिलकानी। नहीं, अभी बताया था, तानिका तैनिका। हाँ, तानिका जी जी। तैनिका, तैनिका होता है मजरूर मंसूब और तानिका होता है मरफू, ठीक है। तो तानिका होता है मरफू मुसन्ना के लिए, और अब आपने कहना है कि वो 2 कमरे हैं। तानिका गुरफतानी। वेरी गुड, चले, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर मुसन्ना का सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो पूछ लें अभी, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मुझे आपको बताना था, ठीक है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये हाजानी हाजैनी हातानी हातैनी जानिका जैनिका तानिका तैनिका, वैसे इतना मुश्किल नहीं है याद करना, ठीक है। याद होना चाहिए, अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा हम जब बनाएंगे, जुमला इस्मिया बनाएंगे या कुरान को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे, तो हार्डली ये वर्ड्स आपको नजर कहीं पर आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम आज के लेसन पे, क्योंकि ये मुझे सिर्फ इसको कंप्लीट करना था बस। चलें आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, हमने कहा कि मारफा की 5 अक़साम हमने पढ़ी है, ठीक है। हमने 3 में बना के देख लिया, ठीक है। अलम देख लिया, मुअर्रफ बिल लाम देख लिया, इस्मुल इशारा देख लिया। अब हमने क्या देखना चाहिए बताइए? ज़मीर।
ज़मीर, ठीक है। तो आज जो हम नई चीज शुरू करेंगे जुमला इस्मिया में, इंशाअल्लाह वो ज़मीर से करेंगे, ठीक है। अच्छा, ज़मीर क्या होता है? प्रोनाउन की डेफिनेशन आपने हमेशा बचपन में याद की होगी, ज़मीर की डेफिनेशन याद की होगी। बिस्मा, ज़मीर की डेफिनेशन क्या होती है? जी आपी। ज़मीर की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन की, ज़मीर की। जो नाम की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। जो इस्म की जगह पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ज़मीर कहा जाता है। सबको पता है ये बात? जी जी सबको पता है, ठीक है। तो जैसे एक यहाँ पर बंदा है जैद, ठीक है, जैद तो हमारे साथ रहता ही हमेशा, ठीक है। एक बंदा है हामिद, ठीक है, और एक बंदा है महमूद, ठीक है। ये तीन हमारे पास ये कहें नाम है, एक है जैद, एक है हामिद और एक है महमूद, ठीक है। अब ये बात करने वाला है यहाँ पे जैद, ठीक है। जैद बात कर रहा है हामिद से, ठीक है। जैद किससे बात कर रहा है? हामिद से। अब ये दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे इंसान की, ठीक है। ये दोनों मिलके बात कर रहे हैं किसी तीसरे इंसान महमूद की, ठीक है। तो जैद जब अपने बारे में बात करेगा तो क्या वो ये कहेगा जैद ने कहा, या वो ये कहेगा कि मैंने कहा? क्या कहेगा वो? मैंने कहा। मैंने कहा। मैंने कहा, ठीक है। तो मैं लफ्ज इस्तेमाल करेगा ना, वो इंग्लिश में क्या करेगा? आई आई, है ना। इंग्लिश में आई इस्तेमाल करेगा, और उर्दू में कहें तो मैं इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अच्छा, वो बात कर रहा है हामिद से। अब वो हामिद से बात करते में हामिद 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 करेगा या फिर तुम कहेगा? तुम, आप, है ना। तुम कहेगा, आप कहेगा, ठीक है। जिसके लिए लफ्ज आता है यू, है ना, या तुम, तू, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब किसी और तीसरे की ये लोग बात कर रहे हैं जो कि महमूद है, तो ये हर बार महमूद 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 कहेंगे या फिर वो कहेंगे? वो, उसने, है ना। वो ऐसा करता है, उसने ऐसा किया, जिसको हम ही, हिज, हिम, है ना, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आई, यू, ही, या फिर मैं, वो, तुम, ये सब क्या हो जाएंगे? जमीर। ज़मीर। ये सब जमायर हो जाएंगे, ठीक है। जमीर सिंगुलर, जमायर प्लूरल, ये सब जमायर हो जाएंगे। ये किसकी जगह पर आए हैं? ये जैद, हामिद, महमूद की जगह पर आए, है ना। ये नाम की जगह पर आए। तो इसम की जगह पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें जमीर कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? जी आपी। इतना सबको समझ में आया कि हमने जब जो भी इस्म है अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो हम इस्तेमाल करेंगे जमायर। जमायर में हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो एक अलग लफ्ज बनेगा, ठीक है। किसी सामने वाले के लिए जब बात करेंगे तो दूसरा वर्ड होगा, किसी तीसरे के लिए बात करेंगे तो कोई और ही वर्ड सामने आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कितने लोग हैं यहाँ पे? तीन लोग हैं, ठीक है। एक बात करने वाला है, ठीक है, एक बात करने वाला है फर्स्ट, एक जिससे बात की जा रही है सेकंड, और एक जिसके बारे में बात की जा रही है वो हुआ थर्ड। इतना समझ में आया? जो बात कर रहा है फर्स्ट, जिससे बात की जा रही है सेकंड, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो हुआ थर्ड। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे जैद बात कर रहा है तो जैद क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। अच्छा, हामिद से बात की जा रही है तो हामिद क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। महमूद की बात की जा रही है तो महमूद Third क्या हो person. जाएगा? थर्ड Third पर्सन हो person. जाएगा। इतना समझ में आया? जी आपी।
अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया, मैं, तुम, ठीक है, आप, इस तरह के अल्फाज हमने किए, किसी एक से बात की तो, दो से बात की तो आप लोगों को क्या लगता है मुज़क्कर मुअन्नस और ये सब अरबी में एक ही होंगे या सबके लिए अलग अलग होगा? आप ये अलग 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 होंगे। क्योंकि ये अरबी जबान की खूबसूरती है कि इसमें मुज़क्कर मुअन्नस हम सबको अलग अलग देखते हैं, वाहिद अलग, मुसन्ना अलग और फिर जमा अलग होता है। ठीक है, ये इसकी खूबसूरती है कि कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, अगर मैंने कहा वो, तो अगर वो कहती हूँ तो आप समझ नहीं सकते ना, एक की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तीन की बात हो रही है। लेकिन अरबी जबान में एक जब वो होगा, दो वो होंगे या फिर तीन वो होंगे, आप समझ जाओगे। आपने कहा वो, तो आप नहीं समझ पाओगे ना मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ या लड़की की। लेकिन अरबी जबान में आप वो कहने से लड़की का भी समझ जाओगे, लड़के का भी समझ जाओगे। दो लड़कियों की बात हो रही है ये भी समझ जाओगे, तीन की बात हो मतलब दो से जायद की बात हो रही है वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट। अब यहाँ पर इनके कुछ नाम हैं, वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? बात करने वाला, है ना, जो बात कर रहा है। तो बात करने वाला कहलाता है मुतकल्लिम। क्या कहलाता है? मुतकल्लिम। ठीक है, बात करने वाला कहलाता है मुतकल्लिम। ठीक है, अब वो जिससे बात कर रहा है, जिससे मुखातब हो रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा मुखातब। ठीक है, जिससे बात की जा रही है वो कहलाएगा मुखातब। ठीक है, अब वो हाजिर है ना, मौजूद है ना सामने, इसलिए उसको हाजिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो सामने जो इंसान मौजूद है उसको मुखातब और हाजिर कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन वहां से गायब है ना, मौजूद नहीं है ना अभी, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है गायब। याद रहेंगे ये। फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम क्योंकि वो कलाम कर रहा है, सेकंड पर्सन मुखातब या हाजिर क्योंकि उससे आप मुखातबत कर रहे हैं, थर्ड पर्सन क्योंकि वहां मौजूद नहीं है इसलिए उसे कहा जाएगा गायब। ठीक है, ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि जब आप सीगे आप बताएंगे ना तो आप कहेंगे कि ये मुखातब का सीगा है, ये गायब का है, ये मुतकल्लिम का है। ठीक है, इतना समझ में आया। फर्स्ट पर्सन इज मुतकल्लिम, सेकंड पर्सन इज मुखातब और हाजिर, एंड थर्ड पर्सन इज गायब। मुतकल्लिम जो बात कर रहा है, मुखातब जिससे बात की जा रही है, और गायब जिसके बारे में बात की जा रही है। इतना समझ में आया? जी अभी। ठीक है, अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुतकल्लिम के लिए क्या वर्ड यूज होगा, मुखातब के लिए क्या होगा, गायब के लिए जब जमीर इस्तेमाल की जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, तैयार है सब लोग? जी आप जी ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं मुजक्कर की। ठीक है, मुजक्कर की, मुजक्कर में हम वाहिद देखेंगे, ठीक है, हम मुसन्ना देखेंगे और हम जमा देखेंगे। ठीक है, मुजक्कर में हम सबसे पहले वाहिद देखेंगे, फिर मुसन्ना देखेंगे, फिर जमा देखेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पे जो हमारा चार्ट बनेगा ना, ये थर्ड पर्सन से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? थर्ड पर्सन से। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन होगा? ही होगा, आई होगा या यू होगा? ही होगा। ही होगा। ठीक है, ही होगा हमारे लिए ना। चलें, ये होगा ही। ठीक है, अब ही के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं। अगर हम मुजक्कर की बात कर रहे हैं, ठीक है, गायब है वो, वाहिद है वो, तो हम उसके लिए कहेंगे हुआ। क्या कहेंगे? हुआ। अब आप लोगों ने इसको पढ़ने से पहले ही कई बार सुना है ना, हुआ हुआ, कि आप लोग याद कर लें, ही के लिए हुआ इस्तेमाल किया जाता है, जब हम पढ़ेंगे तब याद करेंगे। ठीक है, तो वाहिद, मुजक्कर, गायब, क्या होता है? हुआ। क्या होता है? हुआ। हुआ।
اب میں کہنا چاہتی ہوں وہ دو، تو وہ دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہما. کیا کیا جاتا ہے؟ ہما. ٹھیک ہے. اور اگر میں کہنا چاہتی ہوں دو سے زیادہ، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گی ہم. ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا یہ؟ ہوا، ہما، ہم. کیا ہو گیا یہ؟ ہوا ہما ہم. سب لوگ اپنے مائکس میوٹ کریں اور 5 بار بولیں ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ ہوا کیا ہے، تو آپ کہیں گے واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. واحد ہے، مذکر ہے، اور یہ ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ ہی یعنی غائب کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو واحد مذکر غائب اگر میں آپ سے پوچھوں کیا ہے، تو آپ کہیں گے ہوا. ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب کیا ہے؟ ہوا. اگر میں آپ سے کہوں کہ جمع مذکر غائب کیا ہے، تو کیا بتائیں گے آپ؟ ہوم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آ گیا سمجھ میں کہ واحد میں ہوگا ہوا، مثنیٰ میں ہوگا ہما، اور جمع میں ہوگا ہم. یعنی یہ ایک، ٹھیک ہے، یہ دو، اور یہ دو سے زیادہ. ٹھیک ہے. ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم. یاد ہو گیا سب کو؟ جی ٹھیک ہے. یہ بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، ہوا ہما ہم. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر اوکے، یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں مؤنث کی. ٹھیک ہے. ہم کون سا صیغہ کر رہے ہیں ابھی؟ غائب کا یا پھر متکلم کا؟ کس کا کر رہے ہیں؟ غائب. ٹھیک ہے. غائب میں مجھے یہ بتائیے ہم کیا بولتے ہیں کسی لڑکی کے لیے؟ شی. شی بولتے ہیں نا کسی لڑکی کے لیے. جب ہم انگلش میں بات کرتے ہیں شی، اردو میں ہم نہیں سمجھ سکتے، اردو میں ہم وہ ہی بولتے ہیں نا، وہ. اب شی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے واحد کے لیے، یہاں پہ ہم دیکھیں گے مثنیٰ کے لیے، اور یہاں پہ دیکھیں گے ہم جمع کے لیے. ٹھیک ہے. مؤنث میں غائب میں ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو واحد کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیا. کیا ہوتا ہے؟ ہیا. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں، آپ نے مذکر کا مثنیٰ کیا بنایا تھا؟ ہما. ہما. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کا بھی ہما ہی بنے گا. یعنی دو ہیا، دو لڑکیاں اگر ہوتی ہیں تو ہم اس کو بولیں گے ہما. ٹھیک ہے. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ بھئی اگر ہما بولیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ دو مذکر کی بات ہو رہی ہے یا دو مؤنث کی بات ہو رہی ہے؟ جس طرح سے ہم مجرور اور منصوب کی بات کر رہے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ پتا چلے گا، کانٹیکسٹ دیکھ کے پتا چلے گا، تو یہ بھی پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے. اگر پیچھے سے ہم بات کر رہے ہوں گے لڑکیوں کی، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہما لڑکیوں کے لیے آئے گا. اگر پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے لڑکوں کی، تو یہ ہما لڑکوں کے لیے آئے گا، ہے نا؟ کیونکہ بات تو ہمیں پتا ہوگی نا، پروناؤن ہمیشہ ناؤن کی جگہ پر آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کسی اسم کی بات تو ہو ہی رہی ہوگی نا، تبھی تو پروناؤن استعمال کیا. تو کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہوگی، بات چلی آ رہی ہوگی کہ جیسے کہ دو لڑکے کمرے میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں وہ دونوں، وہ دونوں. تو اب یہاں سے آپ سمجھ جائیں گے نا کہ یہ وہ دونوں لڑکوں کی بات ہے یا لڑکیوں کی، ہے نا؟ تو اسی طرح سے یہاں پہ یہ ہما جو ہے آپ کو بعد میں چل کر سمجھ میں، جیسا بھی آپ کی جو بات چل رہی ہوگی اس سے سمجھ میں آ جائے گا. ہیا، ہما. اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ہننا. کیا ہوتا ہے؟ ہننا. ٹھیک ہے. مائکس میوٹ کیجئے اور اس کو ریپیٹ کیجئے. ہیا، ہما، ہننا. ہیا، ہما، ہننا. ہیا، ہما، ہننا. ہیا، ہما، ہننا. ٹھیک ہے.
दोनों को मिला के अब हम पढ़ते हैं हुवा हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। किसको याद हो गया हैंड रेस करें जरा। जी मिसेस कौसर सुनाए जरा। मुजक्कर के लिए हुआ हुमा हुम, मोनस के लिए हिया हुमा हुन्ना। वेरी गुड। उम्मे ऐमन। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। उस्मा फहमीद। जी आपी। हुआ हुमा हुन्ना हिया हुमा हुन्ना। फिर से। साजी गलत पढ़ दिया मैंने। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। वेरी गुड। सोबिया बिलाल। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। वेरी गुड। राशिदा। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। फौजिया जावेद। हुआ हुमा हुम मुजक्कर के लिए है और मुन्नस के लिए हिया हुमा हुन्ना। शमसा गुल। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। वेरी गुड। नसीम जफर। हुआ हुमा हुम और मोनस के लिए हिया हुमा हुन्ना। अस्मा बीबी। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। वेरी गुड माशाल्लाह। याद हो गए सबको। ठीक है। जी। ये हमने इस्तेमाल करना है उस इंसान के लिए जो कि मौजूद नहीं है। ठीक है। अब मैं जैसे कहना चाहती हूं, मैंने कहा जैदुन सालिहुन। ठीक है। जैद नेक है। अब मैं जैद के लिए कहना चाहती हूँ वो नेक है। ठीक है। बिस्मा क्या कहूंगी अब मैं। जी बिस्मा। आपकी खाजा प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाह रही हूँ ना, जमीर इस्तेमाल करना चाह रही हूँ। ये हाजा नहीं हुआ सालिहुन। हुआ है ना। सालिहुन। जी आपी। वो हाजा तो इशारे के लिए होता है कि मैं इशारा करके बोल रही हूँ। ठीक है। जी इशारा कर रही हूँ। अभी मैं इशारा नहीं कर रही। अभी जैद कहीं है ही नहीं जहां मैं इशारा कर सकूं। मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। तो हुआ जी सालिहुन। सालिहुन। ठीक है। हुआ सालिहुन। अच्छा अब मुझे ये बताएं अमरिया जन्नत, मुझे ये बताएं कि अब इस हुआ की चारों प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अमरिया आप जवाब देंगी। जी सवाल दोबारा रिपीट करिए। जी जी इसकी चारों प्रॉपर्टी बताएं मुझे हुआ की। जिन्स के एतबार से क्या होगा ये। चले कायनात आप बताएं जिन्स के एतबार से हुआ क्या होगा। जी मैम, जिन्स के एतबार से होगा मुजक्कर। अदद के एतबार से। वाहिद। और एराब के एतबार से। एराब के एतबार से मरफू। कैसे पता चला मरफू है। मुब्तदा जो होते हैं वो मरफू होते वेरी गुड। ठीक है। क्योंकि अभी हम मुब्तदा बना रहे हैं इसलिए हम इसका मरफू पढ़ रहे हैं। ठीक है। मंसूब मजरूर हम इसका बाद में पढ़ेंगे। अच्छा ये मारफा है या नकरा। हैं। मारफा। कैसे पता चला। मारफा मुब्तदा मारफा ही होता है। मुब्तदा मारफा होते हैं ऐसे पता चला या कोई और वजह से भी पता चला। क्योंकि ये जैद की जगह पे है ना, हुआ इसम की जगह पे ज़मीर यूज कर रहे हैं तो मारफा हुआ। बात तो सही है लेकिन जवाब और प्रॉपर हो सकता है क्योंकि हमने इसमें मारफा की जो अकसाम पढ़ी थी उसमें जमाइर जो थे वो उसमें से एक किस्म है ना। जी जी। ठीक है। तो जो जमाइर होते हैं वो मारफा होते हैं। ठीक है। क्योंकि हमने ये बहुत पहले पढ़ा था। ठीक है। जी जी। चले तो ये हमने चारों प्रॉपर्टीज देख ली। इस्म की चारों प्रॉपर्टीज हमें हमेशा पता होना चाहिए, चाहे वो इशारा हो, चाहे वो जमीर हो, चाहे वो कोई सा भी इस्म हो। चार प्रॉपर्टीज मस्ट हमें पता होना चाहिए।
हुआ सालिहुन। अच्छा मुझे राशिदा आप बताइए, ये तो हमने कहा कि ज़ैदुन सालिहुन, अगर मैं कहना चाहती हूँ मरियमु सालिहतुन और मरियम की जगह में ज़मीर इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो मैं क्या कहूंगी? हिया हिया एक तो जब मैं नाम लेके पूछा करूँ तो सिर्फ वही जवाब दिया करें। जी हिया सालिहतुन। हिया सालिहतुन। अच्छा अब अगर मैं कहना चाहती हूँ, माइक म्यूट करें, जी, अगर मैं कहना चाहती हूँ कि जैद और हामिद, ठीक है, ये दोनों सौले हैं, ठीक है, तो जैद पे क्या लगाऊंगी, हामिद पे क्या लगाऊंगी, सौले के लिए क्या लगाऊंगी? अब इन दोनों की जगह में जमीर इस्तेमाल करना चाहती हूँ कशफ। ज़ैदुन व हामिदुन हुम। जैदुन व हामिदुन, फजीला शौकत, जैद और हामिद की जगह मैं जमीर इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना चाहती हूँ कि जैद और हामिद नेक हैं। नसीम आप बताइए। जैदुन व हामिदुन हुमा स्वालिहानी। अच्छा मुझे वो ये हुमा बताएं आएगा, हुमा कि सालिहान। एक मिनट जब मैं उनसे बात कर रही हूँ उन्हें ट्राई करने दें। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारा पर्पस क्या होता है जमीर के इस्तेमाल करने का? पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं हम? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी नहीं जी। नहीं कोई बात नहीं, हम क्यों करते हैं? ताकि हमें नाउन का इस्तेमाल ना करना पड़े वहां पर, है ना। जी जी जी, हुमा हुमा स्वालिहान। हुमा सालिहानी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा एक रिक्वेस्ट करूंगी आप तमाम से कि जब कोई ट्राई कर रहा होता है कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाए तो सबने अपने माइक्स अनम्यूट नहीं कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए कि उन्हें टाइम देना चाहिए कि जहां पे वो गलत हुई है वो उस चीज को क्लियर कर लें, कर लेंगी वो क्लियर, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा बिस्मा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मरियम और आयशा नेक हैं। हुमा स्वालिहतानी। हुमा सॉलिहतानी, माशाल्लाह, ठीक है, आगे बढ़े इस चीज से। जी आपी। चलें अब ये हमारा हो गया किसका, हमने किया गायब का, ठीक है, ये हमने किया गायब का। अब हमने जब हम थर्ड से शुरू हुए तो अब कहाँ आएंगे हम? सेकंड। सेकंड पर आएंगे। सेकंड के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? यू। यू करते हैं, है ना। अब यू के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले यू के लिए हम मुजक्कर में देखेंगे, ठीक है, मुजक्कर में देखेंगे, वाहिद में देखेंगे, मुसन्ना में देखेंगे, जमा में देखेंगे, ठीक है, यू के लिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मुजक्कर के वाहिद के लिए अगर मैं कहना चाहती हूँ यू, आप, ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे अंता। क्या इस्तेमाल करेंगे? अंत, अंता, ठीक है। ये जो जबर है ना इसका बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ये कहें कि मूव होने वाला है ये, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मूव होगा तो इसका ख्याल रखें, ठीक है। मुजक्कर में अगर मैं बात कर रही हूँ वाहिद की, मुखातब की, तो मैं क्या कहूंगी? अंता, यानी आप, ठीक है। अगर मैं कहना चाहती हूँ कि आप नेक हो तो मैं क्या कहूंगी? अगर किसी मुजक्कर से बात कर रही हूँ तो अंता सालिहुन, ठीक है, तो ये अंता इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि मुसन्ना में क्या इस्तेमाल किया जाएगा, तो मुसन्ना में कहा जाएगा अंतुमा। क्या कहा जाएगा? अंतुमा, अंतुमा, ठीक है, अंतुमा। और
अंतुमा यानी दो के लिए बात कर रही हूँ, तुम दो। अगर मैं कहूँ कि तुम दो मुजक्कर नेक हो तो क्या कहूंगी मैं? अंतुमा स्वालिहानी अंतुमा सौलिहानी। अगर मैं जमा के लिए बात करूंगी तो जमा के लिए मैं कहूंगी अंतुम। क्या कहूंगी? अंतुम अंतुम। ठीक है? अगर मैं कहना चाहती हूँ कि तुम सब नेक हो तो मैं क्या कहूंगी? अंतुम स्वालिहूना अंतुम सौलिहूना। ठीक है? माइक्स म्यूट रखेंगे, 5 बार दोहराएंगे। अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम। ठीक है? याद हो गया? ठीक है, अब इसके बाद मुअन्नस भी कर लेते हैं, फिर एक साथ आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, अब ये मुजक्कर हो गया। अब हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है मुअन्नस। ठीक है, हम इसी को मुअन्नस कर देते हैं। ठीक है, अब हमें इस्तेमाल करना है मुअन्नस। ठीक है, मुअन्नस करना है। यहाँ पर क्या था? अंता था। ठीक है, तो मुअन्नस में हो जाएगा अंती। क्या हो जाएगा? अंती। इसलिए मैंने कहा था इस जेर, इसका ध्यान रखिएगा, ये बड़ा मूव होना है इसको। ठीक है, अब देखिए अंता से क्या हो गया? मर्द के लिए। अंती से क्या हो गया? मुअन्नस के लिए। फर्क हो गया ना? जमीन और आसमान का फर्क हो गया ना, जिन्स चेंज हो गई। तो याद रखना है अंती। अच्छा, जिस तरह से हमने मुसन्ना में हुमा हुमा दोनों को सेम रखा था, इसी तरह से यहाँ पर भी दोनों को क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? अंती अंतुमा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा अंतुन्ना। क्या हो जाएगा? अंतुन्ना अंतुन्ना। ठीक है, चार्ट आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अंतुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना। माइक सब म्यूट करें, 5 बार बोलेंगे। अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना। अगर हम एक साथ बोलेंगे तो हम कहेंगे अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। ठीक है, जल्दी जल्दी हैंड रेस करें। पहले मैं लोअर ऑल करूं, 1 सेकेंड। अब करें हैंड रेस। जी जी उस्मा। जी आप ही। अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। जी सोनिया। अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। जी शाइस्ता। शाइस्ता। अस्मा। अंतुमा अंतुम, अंती अंतुम अंतुमा अंतुन्ना। अस्मा बीबी। अच्छा, अभी आपने बताया ना। जी जी फौजिया। अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। कायनात। जी मैम, मुजक्कर में होगा अंता अंतुमा अंतुम, मुअन्नस में अंती अंतुमा अंतुन्ना। उम्मे ऐमन। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। एक तो मुझे पता ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जो चीज मैंने अभी पढ़ाई नहीं है उससे आगे बढ़कर आप बताना शुरू कर देते हैं। मैंने ये बिल्कुल डे 1 का जो इंट्रोडक्शन था, मैंने उसमें ये बात की थी कि जब मैंने अना नहनु पढ़ाया ही नहीं है, मुझे ये बताएं कि अगर किसी बच्ची को नहीं पता तो क्या वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगी इस अना नहनु से? जी सोबिया। अंता अंतुमा अंतुम। जी मिस बता रही हूँ। अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। वेरी गुड। जी शमसा। अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। जी मुनीजा। अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। फजीला।
أنت أنتم أنتما أنت أنتي أنتما أنتن. फिर से أنت أنتم أنتما أنتي أنتما أنتن. चले अच्छे से याद कीजिएगा, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, ठीक है, अंतुम्मा नहीं है, ठीक है, ता और मीम से तजदीद कहीं भी नहीं है उसमें, ठीक है, जी अभी याद कीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। जी मिसेस कौसर। जी मैम, मुजक्कर के लिए अंता अंतुमा अंतुम और मोनस के लिए अंती अंतुमा अंतुन्ना। जी नसीम। मुजक्कर के लिए अंता अंतुमा अंतुम और मोनस के लिए है अंती अंतुमा अंतुन्ना। चले अब बाकी से नहीं पूछ रही, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं एक बार फर्स्ट पर्सन भी बता दूं ताकि हमारा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे ना इसकी, ठीक है। चले हैंड्स डाउन कर ले, मैं सबके हाथ लोअर कर दूं, ओके। चले अब यहाँ पर हमने देख लिया वाहिद देख लिया, मुसन्ना देख लिया, सॉरी थर्ड पर्सन देख लिया, सेकंड पर्सन देखा, अब हमारा बचा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं हम? मुतकल्लिम। वेरी गुड, मुतकल्लिम, ठीक है। अब हम मुतकल्लिम भी देख लेते हैं। मुतकल्लिम में मुजक्कर, ठीक है, मुतकल्लिम में मुजक्कर देखते हैं। अब मुतकल्लिम में जो मुजक्कर होता है, ठीक है, वो अपने आप को जब बात करेगा तो क्या कहेगा? आए, है ना, आए कहेगा। अच्छा जब मोन्नस, एक मिनट, जब मोन्नस बात करेगी तो वो अपने लिए क्या कहेगी? आए, वो भी आए कहेगी, है ना, वो भी आए कहेगी। तो हम दोनों के लिए, मुजक्कर के लिए भी और मोन्नस के लिए भी मुतकल्लिम में एक ही वर्ड लेकर आएंगे, एक ही वर्ड लेकर आएंगे। क्या होगा वो? आई, अना, ठीक है, क्या होगा वो? अना होगा, ठीक है, अना होगा। हम बोलते भी है ना, उसमें अना बहुत है ना, उसमें मैं बहुत है, तो वही उससे याद रखिएगा, अना, ठीक है, मुजक्कर में भी मुअन्नस में भी, ठीक है, अना हो गया। अब हमने बात की वाहिद की, ठीक है, हम बात करते हैं मुसन्ना की, और हम बात कर रहे हैं जमा की, ठीक है। हमने ये बात की वाहिद की। वाहिद में मुजक्कर में हमने इस्तेमाल किया अना, ठीक है। अब हम बात करेंगे मुसन्ना की। मुसन्ना में जब हम बात करेंगे मुजक्कर और मुअन्नस दोनों में, ठीक है, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों में, यहाँ पर हम बात करेंगे मुसन्ना में तो हम कहेंगे नहनु। क्या कहेंगे? नहनु, यानी हम दो, है ना, हम जो बात करते हैं ना, हम दो। अब यहाँ पे मुजक्कर में भी मुअन्नस में भी दोनों में नहनु इस्तेमाल होगा, दो के लिए, ठीक है, अना नहनु। अब अगर हम जमा की बात करेंगे, ठीक है, दो से जायद है, तीन लोग हैं, तीन लोग खड़े हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि हमने ऐसा करना है, हम ऐसा करेंगे, ठीक है, उसमें आदमी भी हैं, औरतें भी हैं, और वो बात कर रहे हैं हम करके, ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो भी नहनु ही होगा। क्या होगा? नहनु, ठीक है। तो हमने अना, नहनु, नहनु। अब इसको अगर मैं चार्ट में रखती हूँ, ये है मुजक्कर का, ठीक है, मुजक्कर में वाहिद, मुसन्ना, जमा, ठीक है, और ये मुअन्नस का है वाहिद, वाहिद, मुसन्ना, जमा। तो मुजक्कर में वाहिद में क्या आएगा यहाँ पे? अना। और यहाँ क्या आएगा? नहनु। और यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? और यहाँ क्या आएगा? नहनु, ठीक है। तो ये इसका मुतकल्लिम का बहुत इजी है। वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है अना, मुजक्कर मुअन्नस, और मुसन्ना और जमा के लिए इस्तेमाल होता है नहनु, मुसन्ना और जमा मुजक्कर और मुअन्नस के लिए, ठीक है। तो जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना
انا نحن 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 چلے ماشاءاللہ کلاس کا ٹائم بھی اوور ہو گیا, ہمارا چارٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ چارٹ میں امید کرتی ہوں شیئر ہو گیا ہوگا, نہیں ہوا ہوگا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے بالکل اسی طرح اس کو یاد کرنا ہے. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا. ٹھیک ہے, سینٹینسز بنائیں گے انشاءاللہ اس کے آگے چل کر. ابھی آپ لوگوں نے چارٹ کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. اگر میں آپ سے بولوں کہ آپ نے واحد واحد مؤنث میں غائب کا صیغہ بتانا ہے, آپ نے فوراً بتا دینا ہے کہ وہ ہیا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو بھی میں بولوں اتنے اچھے سے یاد ہو جانا چاہیے کہ آپ فوراً اس پہ اسی ورڈ کو پک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی. دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.